Hello students of class 9th, welcome to this class, lecture number 12, physics. This is DP Devidi, your physics teacher. So students, I hope you have been preparing for your half yearly examination. आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे. तो आफ्टर आई थिंक PT1 टेस्ट, दिस इज फर्स्ट वीडियो, and in this video we will discuss about Newton's laws of motion. In previous video we have already discussed about Newton's first law of motion. You know, according to Newton's first law of motion, if anybody is at rest or in at motion, then there will be no change in the position of rest or position of motion until some external force is used. तो आपको रिमाइंड कराने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज वी हैव एनी बॉडी एट रेस्ट. दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पे है और दिस इज टेंडेंसी, एंड दिस टेंडेंसी ऑफ रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया. तो स्टूडेंट्स रिमेंबर, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड दिस ऑब्जेक्ट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट. कब तक? Until some external force is not used. Means the change in position will take place after only when external force is used, and this is called Newton's first law of motion. In second case, similarly, if any object which is rolling in motion, object in motion. Okay students, if this object is in motion and we can say if any object is in motion, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो मोशन पे ही रहना चाहेगा. कब तक? Until, जब तक some external force is not used. Rolling ball will remain rolling until frictional force or manual force not works. तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर मोशन पर है तो मोशन पे ही रहेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं यूज किया जाए. और एक्सटर्नल फोर्स क्या है? फॉर एग्जांपल, बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड. अब उसको रोकने के लिए 2-3 फोर्सेस काम करेंगे. नंबर 1 फ्रिक्शन फोर्स, नंबर 2 एयर रेजिस्टेंस, एंड नंबर 3 मैनुअल फोर्स. तो इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन से कह सकते हैं हम? एक्सटर्नल फोर्सेज आर नंबर 1 फ्रिक्शन फोर्स, number 2 air resistance, and number 3 manual, we can say manual force. Okay, manual means force applied by any human being. So it was first law of motion by Newton. So okay students, now here we have Newton's second law of motion, and we are continuing our chapter 2, force and laws of motion. The statement is said that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction of force. The rate of change of momentum, आप जानते हैं momentum is called m into v. We have, this is momentum. स्टूडेंट्स, हमने डिटेल में इसके प्रीवियस वीडियो में मोमेंटम एंड इनर्शिया के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं. अगर आप अभी तक न देखे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और आप उसको जरूर कंप्लीट देखिए, तब आपके समझ में आएगा आगे कि मोमेंटम क्या है, इनर्शिया क्या है. बट हियर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and it take place in the direction of force. ये फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा. Force is applied here. This is a body and change in momentum. You know, momentum depends on mass and velocity. If object has constant mass, then velocity will remain change. Suppose mass of object is m
and in this case velocity is v1, and if object changes its position then mass will remain same. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से आया तो मास तो उसका सेम ही रहेगा, बट न्यू वेलोसिटी विल बी v2. तो इन दिस वे हियर यहाँ कर सकते हैं p1 हो गया का mv1, और बट यहाँ हो जाएगा p2 इक्वल टू हो जाएगा mv2. ओके स्टूडेंट्स, तो द चेंज इन मोमेंटम, इस तरह से हम डिफरेंट पोजीशन पे मोमेंटम निकाल सकते हैं, और उस मोमेंटम के चेंज को हम चेंज इन मोमेंटम कर सकते हैं. एंड इफ चेंज इन मोमेंटम इज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो देन चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस बॉडी. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ए रफ डायग्राम एंड दिस इज स्टेटमेंट. तो राइट डाउन स्टेटमेंट. So students, in the continuation of this derivation, here Newton's second law. Newton's second law is m is equal to f is equal to m into a. इसको हम डिफिनेशन के साथ साथ डेरिवेशन भी करेंगे हम इसका. तो स्टेटमेंट के अनुसार आप जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट लेट अ बॉडी ऑफ मास m हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u. ये आपका बॉडी है. फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बॉडी ही बोल सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जिसका मास m है. दिस इज मास, एंड ये क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी समटाइम्स हम v1 v2 बोल सकते हैं. देखिए जैसे कुछ बुक्स में है इसको हम v1 इसको v2 बोल सकते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में यहाँ पे v कहा गया है तो u कहा गया है इसको फाइनल वेलोसिटी. अगर ये आपका फाइनल है और ये इनिशियल है, नो प्रॉब्लम. तो आप किसको किसी भी रूप में लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा है. इक्वेशन ऑफ मोशन में आपका ये क्या था, ये था इनिशियल, और ये क्या था होता था फाइनल. ओके स्टूडेंट्स, तो आप उसी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि जैसे कि आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं. लेकिन यहाँ जैसे है हम इसको सपोज कर सकते हैं कि ये हमारा मास m है, इनिशियल वेलोसिटी है, मास m है, ये फाइनल वेलोसिटी है. ओके स्टूडेंट्स, तो वेलोसिटी नो प्रॉब्लम. मास m, वेलोसिटी v, इसका मोमेंटम क्या होगा m इंटू वी, एंड इसका मोमेंटम होगा m इंटू यू. ओके स्टूडेंट्स, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू p1 माइनस p2, दैट इज mv माइनस mu. और ये है चेंज इन मोमेंटम. रिमेंबर स्टूडेंट्स, चेंज अकर्ड व्हेन आउट ऑफ टू क्वांटिटीज वन इज मोर देन अदर. चेंज तभी हो सकता है जब दो क्वांटिटी हैं, उनमें से एक क्वांटिटी ज़्यादा है और एक क्वांटिटी कम है. तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा. इसके बाद क्या करेंगे, जब आप ये लिख लेंगे देन लिखेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mv माइनस mu. mv माइनस mu क्या है, चेंज इन मोमेंटम है अपॉन टाइम t. आपने यहाँ m कॉमन लिया तो अब आया v माइनस u अपॉन t. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि लिख सकते हैं इसको f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a. क्यों f इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज a दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपको जानते हैं कि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, इसलिए इसको यहाँ पे लिया गया था इनिशियल वेलोसिटी. और ये आपका हो गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर इसको हम हटाएंगे तो f इज इक्वल टू हो जाएगा k इंटू m इंटू a. ओके स्टूडेंट्स, तो आप पहले इतना लिख लीजिए. तो स्टूडेंट्स देखिए कहीं कोई कन्फ्यूजन ना हो. एक्चुअली क्या था, मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने लेट किया था u इनिशियल. तो आप इसको एक तरह से मान लीजिए ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ओके, और फाइनल वेलोसिटी v है. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, तो ये हो गया आपका P1, नो प्रॉब्लम. सपोज कीजिए ये आपका P1 है यहाँ पर और यहाँ पे आपका P2 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे. एक्चुअली हायर क्लास में U और V दोनों यूज किए जाते हैं
बट यहाँ चूंकि आप इक्वेशन आप मोशन पढ़े हुए हैं और आपने पढ़ा है कि u जो है इनिशियल होता है और v फाइनल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ भी लेट कर लिया। हम किसी को भी u किसी को भी रिलेट कर सकते हैं, बट हमको ये मालूम होना चाहिए व्हिच वन इज ग्रेटर, कौन ज़्यादा है, फाइनल ज़्यादा है या इनिशियल ज़्यादा है। जनरली जो इनिशियल को कम माना जाता है और फाइनल वेलोसिटी को ज़्यादा। उस केस में भी अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये आपका P2 है और ये आपका P1 है। P1 ज़्यादा है यहाँ पे, P1 इज ग्रेटर देन P2, मीन्स फाइनल मोमेंटम इज ग्रेटर देन इनिशियल। P मीन्स मोमेंटम और रिमेंबर U मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और V मीन्स फाइनल। तो आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद इसको एक बार नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हियर वी हैव F इज इक्वल टू K इंटू MA। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास K एक कांस्टेंट है। अगर K की वैल्यू 1, एक्चुअली SI में K की वैल्यू 1 ही होती है, तो अगर यहाँ 1 रखेंगे तो F इक्वल टू M इंटू हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। You can write force is equal to mass into acceleration, or A is equal to F upon m. From this conclusion, we can say acceleration is directly proportional to the force applied, and acceleration is inversely proportional to the mass of the object. ये पहला केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सेकंड केस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तब भी आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी next what next is unit of force. Unit of force, FORC. If we have F is equal to m into A, F is called Newton is equal to, and mass is called kilogram. The unit of mass is kilogram and A is acceleration. Unit of acceleration is meter per second square. So we can say that 1 Newton is equal to 1 kilogram meter into second to the power minus 2. So this is the relation between Newton and kilogram meter per second square. So please note this. हाँ, तो स्टूडेंट्स वी हैव अनदर टॉपिक, न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यू नो देर आर 3 laws ऑफ न्यूटन्स। तो लास्ट लॉ विच इज कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन सिंपल वे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रिफ्लेक्ट्स दैट एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। दिस इज़ वेल नोन फैक्ट। ये हमारे सोशल लाइफ में, डेली लाइफ में भी अक्सर हम ये सब देखते हैं कि कहते हैं ना, जनरली कहा जाता है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। एज यू गिव सो यू रीप। तो सिंपल वे है, अगर हम इस वाइट बोर्ड पे फोर्स करेंगे तो वाइट बोर्ड भी हमें फोर्स करेगा। ठीक है, तो ये शो करता है कि ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इन प्रॉपर वे वी कैन से according to Newton's third law of motion, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. We can say to every action there is an equal and opposite reaction. हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। And there are so many applications. In this law there is no formula, only theoretical point of view is there, and with the help of Newton's third law you can understand these cases. How do we walk, why the gun recoils, हम कैसे चल पाते हैं। चलने का कंसेप्ट ये है कि जब हम चलते हैं, यू नो, फ्रिक्शन फोर्स इज देयर, हम खड़े हैं, हमारा मास काम कर रहा है। जैसे हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारा जो फुट है
वो अर्थ सरफेस को प्रेस करता है, ठीक अर्थ सरफेस भी हमें पुश करती है, तो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है और हम आगे चल पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्हाई गन रिकॉइल्स? रिकॉइल मीन्स गन से फायर होता है तो बुलेट आगे जाती है तो पीछे हल्का सा जर्क लगता है, तो दिस शोज इक्वल एक्शन। एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। द फ्लाइंग जेट एंड रॉकेट्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, आगे पढ़ेंगे इन डिटेल, बुक में भी गिवन है, आप आई होप कि आप देख लेंगे। द केस ऑफ बोट एंड शिप, द केस ऑफ हॉर्स पाइप, द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग कार्ट। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन विच वी कैन show Newton's third law of motion. Very simple way, each and every action has its equal and opposite reaction. This is called Newton's third law of motion. And with the help of this law, we can आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे डेरिवेशंस कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो here we have concluded Newton's first, second and third law today in this video. And I hope you will understand and try to solve questions based on F is equal to M into A. Okay students, so write down this definition and some examples. By these examples it will be more clear, and I think you will take help from your book. Okay, so write down. So students, here we have a question numerical based on Newton's second law of motion. So question is, a force of 625 Newton acts on a body of mass 25 kg. Find the acceleration of body. Very simple questions. तो जब भी आपको कोई ऐसे क्वेश्चन दिए जाएँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चंस केयरफुली उसकी रीडिंग कीजिए। रीडिंग करने के बाद जो गिवन है उसको नोट कीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फोर्स इज इक्वल टू 625 न्यूटन, राइट डाउन। एंड क्या गिवन है, मास ऑफ द बॉडी m इज इक्वल टू 25 किलोग्राम। और रिमेंबर कीजिए, अगर आपका मास ग्राम में गिवन है तो फर्स्ट कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। आप जानते हैं कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। अगर ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये जो है किलोग्राम में गिवन है तो नो प्रॉब्लम। ओके, एंड वी नो बाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m इंटू ए। अगर आप देखें कि हमें यहाँ क्या निकालना है, फाइंड द एक्सेलरेशन, A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये गिवन में है, A निकालना है तो A को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर A इज इक्वल टू F/m। ओके, तो ये एक नया फार्मूला हुआ A के लिए। अब आप क्या करेंगे, F की वैल्यू रखेंगे। F फोर्स कितना है, 625 न्यूटन, एंड मास कितना है, 25 किलोग्राम। तो यू कैन राइट हियर 625 न्यूटन अपॉन 25 किलोग्राम, तो 25 एंड यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो इसके आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चंस जो बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Why is it difficult to walk on sandy soil or marshy soil? Sandy means बालू वाली सॉइल है या दलदली ज़मीन है। देखिए, जो टाइट फर्श होती है इसमें हम इजीली चल सकते हैं, बट अगर सैंडी सॉइल है या दलदली ज़मीन है तो वहाँ चलने में हमको दिक्कत होती है, ऐसा क्यों? सेकंड है, वाई डज अ स्विमर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल स्विमिंग इन द वाटर। जो एक स्विमर होता है तो अपने हाथों के ऐसे पीछे की ओर चलाता है, पीछे की ओर चलाता है, क्यों चलाता है वो? तो इसका आंसर आपको देना है। सोचिएगा, ये दोनों के आंसर्स जो हैं वो बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। क्या है मोशन? ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ओके स्टूडेंट्स,
एंड हियर वी वांट टू कंक्लूड। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ डिटेल बताएंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हमारा चैप्टर भी फिनिश होगा, उसमें कुछ हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको नए वीडियोस मिलते रहेंगे, न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, राइट एंड we will meet in next lecture. Take care of yourself, students. Thanks.